प्रोफेसर हैमर एंड जेम्स, राइट। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोफेसर हैमर थे उन्होंने 1990 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए और उन्होंने बेसिकली फोकस किया कि किस तरीके से जो प्रोसेस है उसको रीडिजाइन या रीथिंक करने की जरूरत होती है और किस तरीके से एक्टिविटीज को रिड्यूस करने पे फोकस करना चाहिए। सो when we talk about principles of business process re-engineering, because yesterday we have taken several things related to what is business process, what is business process re-engineering, what are the processes and functions, how they are going together, and so many things we have already taken yesterday. So today we will discuss about the principles of business process re-engineering in detail. Well, in the book Re-Engineering the Corporation, a Manifesto for Business Revolution, it is written by Michael Hammer and James Champy, suggested the following 7 principles. Here, you can see that these principles are basically more or less related to the process re-engineering. Fine. So, इन्होंने जो first point out किया, first principle इन्होंने focus किया, that is work should be designed such that it is result oriented, not process oriented. पहले जो एक्टिविटीज होती थी वो बहुत ज्यादा प्रोसेस पे फोकस होती थी, तो इन्होंने सबसे पहले ये बोला कि जो काम डिजाइन हो रहा है दैट शुड बी डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट शुड बी फोकस्ड ऑन रिजल्ट rather than process. So the first principle states that the tasks performed by different people can be combined into one specialized task. Taking an example, the redesigning of a manufacturing company with separate divisions performing different functions in a sequence. Fine. So what we are going to do? We are going to combine all the tasks to make it as one specialized task rather than one person is performing one task, second is performing second task. So we are taking all the tasks as a specialized task. Fine. Now, it may be possible there is a duplication of communication. It may be possible that there is a duplication of any process or any step. But when we are going to combine all the tasks and all the activities, the duplicacy is removed. ठीक है? तो मेन जो पहली चीज थी वो थी, now one determines customer requirement, the other passes in the information, and the third convey this to various plant and warehouses. These sequential based activities lead to error, rework and delays. When a company re-engineering, it eliminates the assembly line approach. तो अभी तक क्या हो रहा था, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो ये कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे कि पहला काम था कस्टमर रिक्वायरमेंट को मीट आउट करना, जो इंफॉर्मेशन आ रही थी अदर जगह से, तो उससे कस्टमर रिक्वायरमेंट को हम क्या इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहे थे। उसके बाद क्या था इन्होंने कि हमें जो कस्टमर रिक्वायरमेंट आ रही है वो हम प्लांट और वेयर हाउसेस को बताते हैं। तो अभी क्या था कि प्लांट बताएगा कि हमारे पास इस समय पे कितना जो प्रोडक्शन है वो होने वाला है, वेयर हाउसेस बताएगा कितना हमारे पास वर्क ऑलरेडी हो चुका है और कितना हमारे पास इस समय पे स्टॉक है। तो these things are going to make a chaos. तो इसमें क्या हो रहा था, एरर हो रही थी, रीवर्क हो रहा था और डिले आ रहा था। अब कंपनी अगर कुछ चीज री इंजीनियरिंग करना चाह रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि देयर इज अ सिस्टम नोन एज ERP, जो आप लोगों ने इनिशियल लेवल पे पढ़ा था, वो सेंट्रलाइज डेटा को रख रहा है। तो सपोज देयर इज अ मार्केटिंग मैनेजर, ही हैज अ डिमांड ऑफ 100 प्रोडक्ट्स सडनली, उसको पहले अपने सेपरेट नहीं पूछना पड़ेगा वेयर हाउस से एंड प्लांट से कि आपके पास अभी कितना स्टॉक है, because all data is available centrally. He can assess the data and he can easily know that what is the actual situation. So basically क्या हुआ कि
ये क्या है, ये जो हम ERP की बात कर रहे हैं, ये प्रोसेस को री इंजीनियरिंग करके रीथिंक करके ही तो बना है। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें रिजल्ट पे बात करनी है, आउटकम पे बात करनी है, प्रोसेस पे नहीं करनी है। और मेन फोकस, जैसे यहाँ पे अगर हम कुछ इन सीक्वेंशियल बेस्ड एक्टिविटीज को हटाने की बात करेंगे तो हमारा मेन फोकस क्या है, एलिमिनेट द असेंबली लाइन अप्रोच। सेकेंड पॉइंट है, इन्वॉल्व दोज पीपल इन द प्रोसेस हु फेस द आउटपुट। ठीक है, सो हाउ वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व दोज पीपल जो कि आउटपुट को फेस कर रहे हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द वर्क शुड बी डन बाय इंडिविजुअल्स गेटिंग द आउटपुट, दैट इज द कस्टमर टुडे। ठीक है, जो हमारा मेन कौन है, वो है कस्टमर। आउटपुट किसे मिलने वाला है, वो है कस्टमर। सो टुडे दिस कैन बी ऑब्जर्व एज द सेल्फ सर्विस। आपको पता है देयर आर फ्यू मशीन्स जो कि सेल्फ सर्विस को प्रमोट करती हैं। जैसे आप बैंक्स में देखते हो कि बैंक्स में पहले बहुत लंबी लंबी लाइन होती थी जस्ट टू टेक द जो आपको पैसे निकालने जाने हैं, मनी के लिए आपको मनी विड्रॉ करना है या आपको डिपॉजिट करना है। उसके बाद आप देखते हो कि केवल सिर्फ और सिर्फ आपको पासबुक पे एंट्री करानी है, उसके लिए भी बहुत लंबी लाइन लगती थी। सो नाउ कियोस्क इज अ काइंड ऑफ मशीनरी, जो अभी इन्होंने एक सिस्टम ऐड किया, कियोस्क। कियोस्क क्या करता है, कियोस्क जो है वो जो एक प्रोसेस था उसको इन्होंने रीथिंक किया, री इंजीनियरिंग के बेसिस पे इन्होंने एक मशीन डेवलप की जो कि सारे डेटा क्योंकि ये ऑनलाइन मॉड्यूल पे काम कर रही है ना, ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम कर रही है, तो उसके पास ऑलरेडी सारे डेटा अवेलेबल है। तो कोई एक पर्सन आता है, वो अपना पासबुक एंटर करता है, अपना अकाउंट डिटेल डालता है, अपना आईपिन पासवर्ड डालता है और उसकी एंट्री हो गई। सिमिलरली पैसे निकालने हैं, एटीएम कार्ड आपके पास है, आप गए, आपने निकाला। अभी तो डिपॉजिट के लिए भी मशीन कियोस्क लग रहे हैं। तो जो आउटपुट है, जो आउटपुट कौन फेस कर रहा है, दैट इज कस्टमर। और कस्टमर को कैसे प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए और कैसे उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज कल हम लोगों ने बात की थी दैट द प्रोसेस ऑफ BPR इज टू रीएलोकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज or to all the stakeholders. So यहाँ पे this is a kind of reallocation. For example, if a customer is facing any problem, he has to fill in the data himself instead of any office doing it for him. It pushes the work to the consumer. अभी क्या है कि हम जैसे इनकम टैक्स फाइल कर रहे होते हैं या ये सारी चीजें होती है, तो आज के टाइम पे यू गॉट द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। इससे क्या हेल्प मिलती है, इससे ये हेल्प मिलती है कि अगर आपने कुछ गलत एंट्री कर दी है, सो यू कैन गो देयर एंड यू कैन मेक द प्रॉपर एंट्री। यू कैन गो, एडिट का ऑप्शन है, वो भी कर सकते हो। फिर अगर नहीं हो रहा है तो देयर इज अ कस्टमर केयर नंबर, आप वहां पे बोल के अपना एंट्री को सही करा सकते हो। सपोज यू आर गोइंग टू बाय अ म्यूचुअल फंड, आपने खरीदा और उसमें आपका पैन नंबर गलत एंटर है, तो देयर इज अ कस्टमर केयर, आप सीधे बात करके भी कर सकते हो। देन यू कैन सेंड अ स्कैन इमेज टू द कस्टमर केयर, वो भी ठीक कर सकते हैं। फिर आपका जो इन्होंने प्रिंसिपल बताया बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के लिए, दैट इज मर्जिंग डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस प्रिंसिपल हैज बेसिकली मैच्योर्ड एंड इज विजिबल इन द कंसेप्ट डिवीजन ऑफ लेबर। जो डिवीजन ऑफ लेबर का जो कंसेप्ट है उसके लिए यहाँ पे बात हो रही है। सो मर्जिंग डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग यूनिट, दिस मीन्स द डेटा हैंडलिंग मस्ट बी done by the same person who is collecting the data. This reduces the number of errors by eliminating external contact for a process. अभी क्या है कि अगर हमने डेटा कलेक्ट किया है तो अभी कई सारे ऐसे टूल बहुत इजीली बन गए हैं। बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग का मोटिव ही यही था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेटा कोई कलेक्ट कर रहा है, उसकी प्रोसेसिंग कोई कर रहा है, उससे रिजल्ट कोई ड्रॉ कर रहा है। सो नाउ दे आर टेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स जिनके थ्रू अगर आप डेटा कलेक्ट करा रहे हैं तो सिमिलरली प्रोसेसिंग भी तुरंत होने लगती है। सो अगर हम डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग यूनिट को मर्ज करते हैं तो डेफिनेटली इट विल एलिमिनेट द टाइम कंज्यूमिंग बाय बोथ ऑफ द प्रोसेस एंड एज वेल एज द कॉस्ट जो कंज्यूम हो रहा था दोनों प्रोसेस को करने के लिए। नाउ
I can tell you example also that, for example, a company has a structure wherein one department collects the information while the other record it. ठीक है, यही मैंने बताया आपको. Here the shared database will have many errors while translating the information from one department to another department. Suppose you have collected any data which has a different kind of meaning, और वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है, उसको वो दूसरे डिपार्टमेंट वाले किसी अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और किसी अलग तरीके से उसका प्रोसेस कर देते हैं. तो प्रॉब्लम आ गई ना कि आपने जिस तरीके से डेटा कलेक्ट किया था और दूसरा डिपार्टमेंट उसको अलग तरीके से प्रोसेस कर रहा है. सो अगर डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग यूनिट मर्ज हो जाएंगे तो ये टाइम तो बचाएगा ही, साथ में एक्यूरेसी को बढ़ाएगा. नेक्स्ट इज शेयर डेटाबेस टू इंटरकनेक्ट डिस्पर्स डिपार्टमेंट्स. मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया दैट हाउ मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैन टेक द हेल्प ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, कैन टेक द हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग एंड कैन टेक द हेल्प ऑफ प्लांट. ठीक है, बिकॉज ऑल आर इंटररिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड. So the advances in information technology allow the company to connect separate units that are the geographically dispersed by using a shared database. So centralized database is a actually key of ERP, you all know that. और business process re-engineering में भी ये चीज बहुत यूज होती है. Next is bridging the process which are running on similar lines. So what happens of the activities must be integrated rather than the end result. ठीक है, so जो focus है that is to integrate the process. फाइन, एंड रिजल्ट पे अभी हम फोकस नहीं करेंगे, पहले हम प्रोसेस को फोकस करने की कोशिश करेंगे, इनको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे एक्टिविटीज को. द पैरेलल फंक्शन मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड यूजिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड शेयर डेटाबेस. मैंने कल आपको याद है एक दिखाया था इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, एंड किस तरीके से जो पैरेलल नेटवर्क चल रहे हैं आउटपुट में हेल्प करते हैं. So these parallel activities must be linked continuously and coordinated at the process execution. This will eliminate the high cost and delays in the outcome of the process. So ये जो है कॉस्ट जो बहुत ज्यादा आ रहा था और जो डिले हो रहा था, उनको एलिमिनेट करने के लिए पैरेलल एक्टिविटीज कंडक्ट की गई. ठीक है, और ये कंटिन्यूटी में कंडक्ट की जाती हैं. नाउ डिसीजन मेकिंग should also be a part of the work performed. आप अगर देखो, आप डिसीजन आपने ऑपरेशन रिसर्च में आई थिंक डिसीजन ट्री एनालिसिस पढ़ा होगा आपने. कई सारे जैसे ऑपरेशन रिसर्च के अंदर पे आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, गेम थ्योरी पढ़ी होगी आपने. सो इट इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते. सो पहले क्या होता था कि डेटा कलेक्शन कोई कर रहा है, एनालाइज कोई कर रहा है और डिसीजन कोई ले रहा है, बट अब ऐसा नहीं है. So there must be decision adding technology to cut unnecessary control and to keep a check in the process. And Hammer states that decision making करनी चाहिए. So Hammer का कहीं ना कहीं सपोर्ट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी पे भी था. The process can be improved by empowering the authority, जो मैं आपको बोल रही थी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, of the resources with the responsibility to make the decision and improve the workflow. This is possible with an educated and knowledgeable workforce, obviously. So जो time to time training की बात होती है, technology enhancement की बात होती है, development की बात होती है, उसी पे आती है. Last जो आप देख रहे हो, that is capture data at its point of origin. So when we talk about this principle, this is the last principle given by Hammer. This approach saves cost by avoiding costly re-entries and invalid data entries. It is the principle of capturing information only once at the source where it is created. ठीक है, तो वही जो मेरी बात यही थी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, डेटाबेस है. अगर हम वहां से डेटा पिक कर रहे हैं तो हम बिल्कुल ओरिजिनल पिक करेंगे, फाइन. तो अगर हम कहीं और से पिक करते हैं तो हो सकता है कि डेटा में प्रॉब्लम है, डेटा एरर दिखाए, एंट्रीज में डुप्लीकेशन ऑफ एंट्रीज हो. This eliminates the difficulty of transmitting the information and it does not
have to be recorded at different location at various times. Because ERP का तो मोटिव ही वही है कि डेटा का सेंट्रलाइजेशन होना, इंफॉर्मेशन का सेंट्रलाइजेशन होना। तो इनका भी मोटिव यही था कि जो डेटा है वो ओरिजिन से पिक हो, तो कहीं ना कहीं ये दोनों मैच होते हैं, मैप कर पाते हैं एक दूसरे को। सो दीज आर द 7 प्रिंसिपल गिवन बाय माइकल हैमर। नेक्स्ट इन्होंने इसी के बेसिस पे, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, दैट इज द प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग, कि हमको कब जरूरत है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की, ये आइडेंटिफाई करना। ये है हाउ टू इम्प्लीमेंट बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। फाइन, तो वो दैट इज द डिफरेंट थिंग कि वहां पे हम पता करते हैं हमें जरूरत कब है, और यहाँ पे जब हमें पता चल गया कि करना है तो इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए। सो व्हाट यू हैव टू डू, define business vision and objectives, identification and improvement of the process, understand and measure the feasibility of the process, designing the information system and identify technological capabilities, and the last is designing and testing the new prototype. So first of all, you have to know what is your business vision and objectives. So if you know these things, it is actually showing that what kind of goals you have to achieve. Ultimately, we are here to achieve goal. हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है गोल अचीव करना. Then you have to identify the इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, जो मैंने कल डिटेल में बताया था कि कैसे आप इम्प्रूवमेंट प्रोसेस को पता करोगे कि कैसे हमको इस स्टेप पे इम्प्रूवमेंट या री इंजीनियरिंग को लगाना है. नाउ अंडरस्टैंड एंड मेजर द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस. सपोज जो प्रोसेस आपने डिफाइन कर लिया था, अब उसकी फिजिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी कि आप सपोज आपने कोई ऐसा प्रोसेस ले लिया जो फिजिबल ही नहीं है, हाँ, जो आज के टाइम पे सही नहीं है, या बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर्ड कर रहा है, या कॉस्ट बहुत लगाने के बाद भी योर एम्प्लॉयज आर नॉट एबल टू टेक दैट प्रोसेस. सो बेसिकली हमें अपनी प्रोसेस की फिजिबिलिटी चेक करनी है. नाउ डिजाइनिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड आइडेंटिफाइंग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज. अब क्या है, जब हम एक बार प्रोसेस की फिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि दिस इज द बेस्ट प्रोसेस एंड वी कैन इम्प्लीमेंट दिस, ठीक है. सो हमें ये भी तो पता करना पड़ेगा कि उसके लिए हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होगा और कितने हम टेक्नोलॉजिकली एप्ट हैं उस प्रोसेस के लिए. एंड द लास्ट इज डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग द न्यू प्रोटोटाइप. सो इसमें क्या होता है कि आप पूरे सिस्टम पे नहीं करते हैं, यू आर गोइंग टू टेक इट. सपोज आपने इसको किन्हीं 2 यूनिट के बीच में लगा के देखा. इफ इट इज सक्सेसफुल देन यू इम्प्लीमेंटेड इन होल द ऑर्गेनाइजेशन. अदरवाइज इफ इट इज, जैसे मैंने आपको कल बताया था ना कि इफ देयर इज अ लूप, आप देखते हो कि कहीं पे लूप है और लूप फीडबैक लूप शुड बी शॉर्ट, ताकि आपको जल्दी जल्दी उनका फीडबैक मिले और आप उस पर काम कर पाओ. सो डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग द न्यू प्रोटोटाइप इज देयर. और जब आप टेस्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि प्रोटोटाइप में क्या प्रॉब्लम थी और आप उसको ओवरकम कर पाते हो. नाउ द नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ प्री डिसाइडेड बीपीआर इन प्लेस. सपोज आपके पास एक ऑलरेडी बीपीआर है, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसके क्या क्या आपको फायदे मिले सकते हो. दैट इज टोटल कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कस्टमर नीड्स आर द प्रायोरिटी दैट गिव्स अ क्लियर विजन टू द ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. तो एंड वी ऑल नो दैट कस्टमर इज इन सेंटर ऑफ बीपीआर, कल हम लोगों ने पढ़ा था. सो डेफिनेटली इनको प्रायोरिटी देनी है और विजन के साथ इनको मैच करना है. द कस्टमर व्हेन प्रोवाइडेड with a better service that matches their expectation, thus building loyalty in them. तो ऑब्वियसली मार्केटिंग वाले बच्चों ने पढ़ा भी अभी रिसेंटली कि किस तरीके से एक्सपेक्टेशन अगर मीट आउट हुई या सरपास कर गई तो किस तरीके से कस्टमर डिलाइट बनता है. तो कस्टमर डिलाइट की जब हम लोग बात करते हैं, ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स को इनहेंस करती है. तो टोटल कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपका इसके बेसिस पे हो गया. द डिजाइन एंड डिलीवरी ऑफ द बिजनेस process are basically to match the performance with the expectation of the customer. So हमें ऐसे डिलीवरी प्रोसेस, जो बिजनेस प्रोसेस है उसको ऐसे डिजाइन करना है और ऐसे डिलीवर करना है
वो परफॉर्मेंस को मैच कर पाए। सेकेंड जो बेनिफिट मिलता है वो होता है कॉस्ट एडवांटेज का। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस्ट एडवांटेज, एज द होल प्रोसेस इज रीमॉडल्ड, अननेसेसरी कॉस्ट आर एलिमिनेटेड। मैंने आपको बताया ना कि अभी बहुत सारी एक्टिविटीज थी जो आप अलग अलग कर रहे थे तो आपको ज्यादा बार करनी पड़ रही थी, क्लियर। लेकिन जब आप उसको बीपीआर के अंडर में करते हो तो एक्टिविटीज का एलिमिनेशन हो गया, और एक्टिविटीज एलिमिनेशन का मतलब कॉस्ट का एलिमिनेशन होना। सो it reduces the cost and cycle time by eliminating the unproductive activities and organizing the teams। जैसे हम जब ऑपरेशन रिसर्च में मैन का मशीन पे वो करते हैं ना कि कौन से मैन को किस मशीन पे देना, या कौन सा ट्रांसपोर्टेशन में हम करते हैं कि हम कौन से वेयर हाउस को किस प्लांट के साथ मैच करें ताकि हम कॉस्ट का ऑप्टिमाइजेशन कर सके, कम से कम कॉस्ट ला पाए। सो एक ये एडवांटेज हो गया। दूसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है business process reengineering helps an organization to focus on its core competency, which gives it a competitive advantage. These core values are difficult to copy as it become the firm's signature trait. Gaining a competitive advantage gives firms excellence in the broader business process. And जो आपका फिर last है, that is clear value. No, this is not the last. Creates value for customer. So when we talk about creates value for customer, it is the re-engineering process of company strategically puts relevant activities to design, produce, market and support its प्रोडक्ट टू प्रोवाइड कस्टमर वैल्यू। मैंने आपको वैल्यू चेन भी बताना है, वो नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगी जो मैं बोल रही हूँ। सो बेसिकली होता क्या है, द फर्म एनालाइज वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज एंड कंपेयर्स इट विद द कॉम्पिटिटर्स टू फाइंड वेज टू इम्प्रूव इट। जैसे मैंने कल आपको एक छोटा एग्जाम्पल दिया था कि इफ यू आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ वॉलमार्ट, ये इसका फोकस होगा प्रोक्योरमेंट पे, बट हम किसी कंसल्टेंसी फर्म का अगर लेंगे जैसे टीसीएस है, इसका प्रोक्योरमेंट होगा ह्यूमन रिसोर्स पे, इसका जो फोकस होगा वो ह्यूमन रिसोर्स पे होगा, बिकॉज वैल्यू जो क्रिएट होने वाली है वो इन्हीं के थ्रू होने वाली है। नाउ द लास्ट इज क्लियर बिजनेस विजन। It should be very much clear. Business process reengineering gives a firm an explicit vision that aligns its goals and objectives with that a customer need, want and interest. So ये बहुत important चीज है, हमें ये चीज को जो विजन मिशन बनते हैं वो इसीलिए बनते ही हैं ताकि हम अपनी गोल और ऑब्जेक्टिव का आइडेंटिफाई करें, और गोल और ऑब्जेक्टिव ऐसे बनते हैं जो कि कस्टमर की नीड, वांट एंड डिजायर को फुलफिल कर पाए। सो दिस वे एन ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर्स सम ब्रांड आइडेंटिटी एंड एन आइडियल स्ट्रक्चर टू टारगेट द कस्टमर। Well, when we talk about these principles, it is not all about reorganizing, restructuring, downsizing and cost cutting. Well, when we talk about these principles, it is a part of the process. But when जो आपका BPR प्रोजेक्ट है उसमें क्या है, you have to identify various success factors. अब जो आपके ये प्रिंसिपल्स हैं ये उन सक्सेस फैक्टर के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, लाइक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इज देयर। तो जब आपके पास क्लियर विजन होगा तो आप जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव बना पाओगे ना। तो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इज देयर, टीम कंपोजिशन इज देयर, प्रूवन मेथोलॉजी इज देयर, लाइन ओनरशिप इज देयर। लाइन ओनरशिप जो अभी हमने आपके एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की बात की है उससे रिलेटेड हो गया। सो बेसिकली this is the 7 principles given by Hammer and how are implemented and how these principles helps any business to achieve its goal, its mission, its overall objective